Good afternoon, students. This is my second video of this chapter, National Income Accounting. And in first video, I have already make you understand the factor income, non-factor income, golden rules, and national income and domestic income. These three topics have already been covered in that video. In this video, I am going to make you understand the meaning of domestic territory, meaning of national residents, means who are the national residents, and I'm going to begin this topic of this chapter, measurement of national income. Actually, there are three parts of this topic. In these three parts, we have to study three methods of national income accounting, and out of these three methods, I'm going to start in this video the first method of national income accounting. So these are the contents which we have to study in this video. So in this video, we have to learn about domestic territory and national residence. Now you may ask a question that a question may come in your mind that why is it necessary for us to study the concepts of domestic territory and national residence in national income accounting. इस चैप्टर में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो इस चैप्टर में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन मोर फ्रिक्वेंटली, और इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप जानते हैं. इफ़ यू नो दिस टू कॉन्सेप्ट्स you can answer a very important question which is asked more frequently in board examination. So first of all, we'll see that what this question is, which can be answered only if we have the knowledge of domestic territory and national residence. So first of all, we'll see that question. Okay, so that question has four variations, means that question is asked in four types, means there are four types of that question. And first type of that question is based on a concept which we have already studied, that is GDP-MP. Okay, and second variation of this question is based on another concept which we have already studied like GDP also, that is GDP-MP, sorry, GNP-MP. Another concept, that is domestic income. Third question is based on third type of this question is based on domestic income. We know that domestic income is also known as NDPFC. And fourth variation of this question is based on another concept which we have already studied. This is first. Second variation is based on this. Third variation is based on this. And fourth variation is based on the concept of national income, which is also known as NNPFC. Okay. So first of all, we'll see the first variation. Before I give you first variation of that question, which is very important for board point of view, I would like to make you understand the meaning of GDP-MP, which we have already studied. GDP-MP का मतलब क्या होता है? It is a sum total of market values of all goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year. Means in GDP-MP we include all those goods and services and their market values which have been produced within the domestic territory of a country. Now question is asked that if some goods and services are given, means in question some goods and services are given, and it is asked that whether these will be included in GDP-MP or not. So what we have to see, that if these goods and services have been produced within the domestic territory of the country, will be included in GDP-MP. If these have been produced outside the domestic territory of the country, will not be included. Means we will be able to solve this question that if given goods and services will be included in GDP-MP or not, only if we have the knowledge of domestic territory. यदि हमको पता है कि domestic territory का मतलब क्या होता है, तभी हम ये समझ पाएंगे कि कौन से आइटम्स GDP में इंक्लूड होंगे, GDP-MP में इंक्लूड होंगे, कौन से इंक्लूड नहीं होंगे. बिकॉज GDP-MP में केवल वही आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं जिनका प्रोडक्शन विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ हो. तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी. अब थर्ड पे आ जाते हैं, अभी सेकंड को छोड़ देते हैं. थर्ड वेरिएशन इस क्वेश्चन का ये होता है कि इस केस में सम फैक्टर इनकम्स आर गिवन and it is asked that whether these factor incomes, means some rent, wage, interest, profit, royalty kind of items are given, and it is asked that whether these factor incomes will be included in domestic income or not.
So we know that domestic income includes all those factor incomes which have been earned within the domestic territory of a country during an accounting year. So those factor incomes which have been earned within domestic territory will be included in domestic income, and which have been earned outside domestic territory will not be included. तो हम तभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि विच आइटम्स विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम इफ वी नो दैट व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी. So in case of first type of question and third type of question, which are based on GDP, MP and NDP-FC or domestic income, we should have the knowledge of domestic territory. Now another variation is second variation, which is based on GNP-MP, and we know that GNP-MP is the sum total of GNP-MP is the sum total of market values of all goods and services produced by the national residents of a country during an accounting year. मतलब ऐसी सारी goods and services जिनका प्रोडक्शन कंट्री के नेशनल रेजिडेंट्स ने किया हो उनको GNP-MP में इंक्लूड किया जाएगा, और जिनका प्रोडक्शन नॉन रेजिडेंट्स ने किया हो उनको GNP-MP में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. तो फिर से क्वेश्चन में सम आइटम्स सम गुड्स एंड सर्विसेज आर गिवन एंड इट इज़ आस्क्ड दैट वेदर दीज विल बी इंक्लूडेड इन GNP-MP or not. So what we have to see only in this question that whether these goods and services have been produced by the national residents or not. If these have been produced by the national residents, will be included in GNP-MP. If these have been produced by non-residents of the country, will not be included. तो हम बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं if we have the knowledge of national residents. If we know that who are the national residents, we just see that whether those who have produced these goods and services are residents or not. If these are residents, will be included in GNP-MP. If these have been produced by non-residents, will not be included in GNP-MP. So in this case, in case of this question, we will be able to answer this only if we have the knowledge of national residents. And last question is based on national income, which is also known as NNP-FC. In this case also, some factor incomes are given and it is asked that whether these will be included in national income or not. As we know that national income includes all those factor incomes which are earned by the national residents during an accounting year. एक accounting year में national residents ने जो भी factor incomes को earn किया है उसको national income में include करते हैं. तो यहाँ पे हमको क्या पता होना चाहिए कि जो भी factor incomes earn हुई है उसको यदि national residents ने earn करा है तो national income में इनको include किया जाएगा. If non residents ने earn किया है तो national income में include नहीं किया जाएगा. So in this case also, in case of this question also, we should have knowledge of national residents. So in case of second and fourth question, we should have the knowledge of national residents. In case of first and third type of question, we should have the knowledge of domestic territory. And it is a very important question which is based on the concepts of domestic territory and national residents. If we know these two concepts, we can answer these questions. Otherwise, it may be difficult for us to answer these questions. That is why it is necessary for us to understand the concepts of domestic territory and national residents, which we are going to do. Okay. So first of all, we see that what is domestic territory. Look, generally we think that domestic territory is that area which is bounded by the national boundary of a country. एक country की जो national boundary है या political boundary है उसके अंदर आने वाला जो area होता है that is known as domestic territory. कॉमनली यही यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए. या कोई भी यदि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं है, इफ़ एनी इंडिविजुअल इज़ नॉट द स्टूडेंट ऑफ economics and if you ask this question that what is domestic territory, he may answer in this way that the domestic territory is that area which is bounded by the national boundary of a country. But in case of national income accounting in subject economics, there are many areas which are within the domestic territory, which are within the political boundary of a country, but these are not the part of domestic territory. And there are many areas which are outside the political boundary of a country. Even these are included in domestic territory. मतलब यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है, कॉमन मैन है और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे पूछते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, तो जनरली लोग यही बताएंगे कंट्री की जो नेशनल बाउंड्री होती है उसके अंदर जो एरिया होता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी. बट नेशनल इनकम अकाउंटिंग के केस में देर आर मेनी एरियाज विच आर इनसाइड द नेशनल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, but these are not the part of domestic territory. At the same time, there are many areas which are located outside country, if outside the outside the national boundary of the country. Even these are the part of domestic territory of the country. Okay. So यही हमको देखना है कि what it includes. domestic territory में क्या क्या आता है. It includes the followings. पहला, टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री. जो हम कॉमनली जानते हैं कि पॉलिटिकल बाउंड्री के भीतर जो भी टेरिटरी आती है, जो भी कंट्री का एरिया आता है, दैट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी. बट
इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस ऑल्सो. टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या होता है? इफ़ country is bounded by some water bodies, or at the political boundary of the country some water bodies are located like oceans and sea, then the domestic territory of the country is not only the mainland of the country, but in that territorial water also, or in that water body which is located at the national boundary of the country, up to certain extent the domestic territory of the country is considered. For example, our country India is bounded by water bodies from three sides: from western side by Arabian Sea, from southern side by Indian Ocean, and from eastern side it is bounded by Bay of Bengal. So domestic territory of our country is not only the mainland of our country, but in these water bodies also, up to a certain kilometers area is included in the domestic territory of a country. Up to what kilometer? Up to 22 kilometer from the coastal line of India. इंडिया के कोस्टल लाइन से 22 किलोमीटर्स तक का जो एरिया है, किसमें? इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, दैट इज़ नोन एज territorial water, and that is also the part of domestic territory. Means anything which is produced in Arabian Sea, Indian Ocean and Bay of Bengal up to 22 kilometers from the coastal line of India, that will be included in the GDP of India, because that thing is being produced within the domestic territory, because up to 22 kilometers area in these water bodies are the part of domestic territory of our country. Not only this, but air space of our country is also the part of domestic territory. मतलब हमारे कंट्री के ऊपर का जो एयर स्पेस है, इट इज़ नॉट डिफाइंड. ये इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि कितने किलोमीटर तक. जैसे वाटर बॉडीज़ में UN ने डिफाइन किया है कि कंट्री के कोस्टल लाइन से अप टू 22 किलोमीटर एरिया जो होता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी. बट एयर स्पेस का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है. कंट्री के ऊपर जो भी एयर स्पेस है, उसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, दैट इज़ द पार्ट that becomes the part of GDP of that country. For example, जो टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, या जो भी एविएशन सर्विसेज हैं, या एयरवेज सर्विसेज हैं, इनका जो ऑपरेशन होता है वो एयर स्पेस में ही होता है. सो दीज आर ऑल्सो मीन्स ऑल द airways and telecommunication facilities which are using the air space of India, these will be included in GDP of India. Is this clear? Now second point पे हम आते हैं. Ships, aircrafts, etc. operated by the residents of a country between two or more countries will also be included in the domestic territory of a country. For example, there is a ship. That ship is being operated between New Zealand and Australia, but that ship is the owner of that ship is an Indian. Means that ship is being owned by an Indian. So in spite of being outside the domestic territory of a country or our country, that ship will be the part of domestic territory of our country while estimating national income. मतलब ऐसा कोई शिप या ऐसा कोई एयरक्राफ्ट जिसका ऑपरेशन हमारे कंट्री के बाहर हो रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच उस शिप का ऑपरेशन हो रहा है, या कोई एरोप्लेन है उसका ऑपरेशन उसका यूज़ किया जा रहा है बिटवीन South Korea and Japan, but the owner of that aeroplane is an Indian. So in spite of being outside India, that aeroplane and that ship will be included in GDP of India. Means whatever income is earned from that ship and that aeroplane will be included in the domestic income of India, because that will be considered as the part of domestic territory. Is this clear? Now not only this, but the fishing vessels, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by the residents of a country in international water. First of all, we'll see that what is international water. Oceans या सी के का ऐसा एरिया जिस पे किसी भी कंट्री का एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता है. जब ओशन और सी के मिड में चले जाते हैं तो वो कंट्री किसी भी कंट्री के कोस्टल लाइन से अप टू 22 किलोमीटर्स तक ही ओशंस में कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है. उसके बियॉन्ड जो एरिया होता है उस पर किसी भी कंट्री का राइट नहीं होता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर. ऐसे इंटरनेशनल वाटर में यदि कोई फिशिंग वेसल्स ऑपरेट की जा रही है, या कोई भी ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग है, मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस का सोर्स मिला और उस सोर्स
वहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस को निकालने के लिए इक्विपमेंट्स लगा दिए गए जिसको बोला गया ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, और इसका ओनर कोई इंडियन है। या वहाँ पे कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब वहाँ पे एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बना दिया गया और वहाँ से फ़िश वगैरह पकड़ा जा रहा है और उस फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का ओनर इंडियन है। तो इंटरनेशनल वाटर में ये सारे ऑपरेशंस होने के बावजूद भी दिस floating platform, oil and natural gas rig and fishing vessel, though these are not operating within India, these are being operated outside India in international water, but since these are being owned by an Indian, that is why these will be the part of domestic territory of India, और इनसे जो भी इनकम की अर्निंग होगी that will be included in the domestic income of India. Is this clear? Next, embassies, military bases, scientific stations, information and immigration offices, aid agencies etc. of a country located abroad. जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी कंट्रीज़ हैं, all the countries of the world have their embassies in the capital cities of foreign countries. Like India has its embassies in the capital cities of different foreign countries, as well as all foreign countries are having their embassies in the capital city of our country, that is Delhi. दिल्ली में फॉरेन एम्बेसीज़ है और हमारे एम्बेसीज़ फॉरेन कंट्रीज़ की कैपिटल सिटीज़ में है। इज़ इज़ क्लियर? तो ये जितने भी एम्बेसीज़ हैं इंडिया की, एम्बेसीज़ एक बिल्डिंग होती है जिसका हेड होता है एम्बेसडर। एम्बेसडर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर गवर्नमेंट। यदि हमारे गवर्नमेंट को फॉरेन गवर्नमेंट से कोई भी पॉलिटिकल मैटर पे या किसी भी मैटर पे कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करना होता है, सो दैट इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू एम्बेसडर. So different countries have their ambassadors in the capital cities of foreign countries, so that if they want to communicate any message to the foreign governments, they can communicate through the ambassadors. Okay, तो ये एम्बेसडर्स जिस बिल्डिंग में बैठते हैं उसको एम्बेसी बोलते हैं. ओके, तो इंडिया के जितने भी एम्बेसीज़ हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में लोकेटेड हैं, फॉरेन कंट्रीज़ की कैपिटल सिटी में, जैसे अमेरिका की कैपिटल सिटी वाशिंगटन डीसी है, वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी होगी दैट इज़ आउटसाइड इंडिया. इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग दैट इज़ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडियन एम्बेसी जो अमेरिका में लोकेटेड है, इंडिया के बाहर लोकेटेड है, अमेरिका में लोकेटेड है, उसके बावजूद भी दैट विल बी द पार्ट ऑफ वहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, और कोई भी इनकम वहाँ से जो अर्न होगी दैट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया. इज़ दिस क्लियर? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है. इसके अलावा यदि इंडिया का मिलिट्री बेस किसी फॉरेन कंट्री में है, सपोज़ ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने एक मिलिट्री बेस बनाया, वहाँ पे इंडिया के जो भी सोल्जर्स हैं वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो मिलिट्री बेस इंडिया के आउटसाइड है. In spite of being outside India, that will be the part of domestic territory of India. Scientific station India ने suppose Antarctica में बनाया है, so that is outside India, even that will be the part of domestic territory of India. Information and immigration offices भी होते हैं हर कंट्री के फॉरेन कंट्रीज़ में. तो इंडिया के जो भी इंफॉर्मेशन एंड इमिग्रेशन ऑफिसेज फॉरेन कंट्रीज़ में, इन स्पाइट ऑफ बीइंग आउटसाइड इंडिया, दिस विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. एंड एड एजेंसीज, एड का मतलब अनुदान देना, एड का मतलब सहायता देना. जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं एड प्रोवाइड करती हैं. जैसे इंडिया इज़ डेवलप्ड एज़ कम्पेयर टू मेनी अफ्रीकन कंट्रीज़, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ को एड देने के लिए, जिसे ग्रांट भी बोलते हैं, डोनेशन देने के लिए, ताकि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ाया जा सके, इंडिया ने बहुत सारी एड एजेंसीज़ फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी सेटअप करी है. तो दीज एड एजेंसीज़ आर आउटसाइड इंडिया. इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग दीज विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी. तो इंडिया के जितने भी एम्बेसीज़ फॉरेन कंट्री में हैं, मिलिट्री बेसिस फॉरेन कंट्रीज़ में, साइंटिफिक स्टेशंस फॉरेन कंट्रीज़ में, इंफॉर्मेशन एंड इमिग्रेशन ऑफिस फॉरेन कंट्रीज़ में, एड एजेंसीज़ फॉरेन कंट्रीज़ में, इन स्पाइट ऑफ बीइंग आउटसाइड इंडिया, दीज विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. And whatever goods and services are produced will be included in GDP of India, as well as whatever a factor incomes earned from these will be included in domestic income of India. So these are the things which are included in the domestic territory of a country. इसको समझाने के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट, होम कंट्री का एग्जाम्पल मैं अपने कंट्री का ले रहा हूँ, इंडिया का ले रहा हूँ. इट एक्सक्लूड्स फॉलोइंग्स. अब मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था देयर आर मेनी एरियाज़ विच आर द पार्ट ऑफ आर कंट्री, विच आर लोकेटेड विद इन आर कंट्री, बट दीज आर नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग. ये कौन कौन से होते हैं? एम्बेसीज, मिलिट्री बेसिस, साइंटिफिक स्टेशंस, इंफॉर्मेशन एंड इमिग्रेशन ऑफिस, एड एजेंसीज एक्सेट्रा, फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री. मतलब हमारे कंट्री के भीतर जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, अमेरिकन एम्बेसीज, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसीज, फॉरेन मिलिट्री बेस यदि हमारे कंट्री में फॉरेन कंट्रीज़ के हैं,
यदि साइंटिफिक स्टेशंस फॉरेन कंट्रीज़ ने हमारे कंट्री में बनाया है, इंफॉर्मेशन एंड इमिग्रेशन ऑफिस ऑफ फॉरेन कंट्रीज़ लोकेटेड इन इंडिया, ad agencies of foreign countries located in India. These are located within India. Even these are not the part of domestic territory of a country. Okay. अमेरिकन एम्बेसी जो इंडिया में है दैट इज़ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अमेरिका. ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री बेस यदि इंडिया में है तो दैट इज़ द पार्ट दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग इनसाइड इंडिया दैट विल बी द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया. साइंटिफिक स्टेशन यदि श्रीलंका ने इंडिया में लगाया दैट इज़ द पार्ट ऑफ श्रीलंका. इंफॉर्मेशन एंड इमिग्रेशन ऑफिस लोकेटेड इन दिल्ली विद इन आवर कंट्री but of Russia will be the part of domestic territory of Russia. Ad agency of foreign countries in India will be the part of the foreign countries. तो इन पे जो भी incomes generate होंगी these will not be included in GDP of India because these are not the part of domestic territories. Not only this but ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका ओनर कोई कंट्री नहीं है, वो हर कंट्री के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. इनके मेंबर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड होते हैं. इनको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, लोकेटेड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री. मतलब वर्ल्ड बैंक के, IMF के, WTO के, WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके ऑफिसेज जो इंडिया में लोकेटेड हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इनसाइड इंडिया विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट नहीं होंगे. तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट हैं, कौन से इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट नहीं हैं. तो जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि अ गुड इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड income earned by a person who is working in Indian embassy in America, whether this income will be included in the domestic income of America or domestic income of India. So this will be included in domestic income of India because this income is being earned in America. But in America, in which building? In the building of Indian embassy which is located in America. So Indian embassy located in America is the part of domestic territory of India. That is why that income will be included in domestic income of India. Income earned in form of salary by a person who is working in Information and Immigration Office of Australia located in India will be included in the domestic income of India or Australia. So that income will be included in the domestic income of Australia because though that income is being earned within India, but in India, in Information and Immigration Office of Australia, so that Information and Immigration Office which is located in India but it is belonging to Australia, that is why it is a part of domestic territory of Australia, that is why it will be included in the domestic income of Australia. तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नेशनल रेजिडेंट्स. एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु आर द नेशनल रेजिडेंट्स. ओके, because in case of national income and GNP-MP, only those items will be included which are earned by which are related to the national residents. So we should know the meaning of national residents. Resident is defined as a person or institution. मतलब resident एक person भी हो सकता है, एक institution भी हो सकता है. institution मतलब schools, colleges, hospitals, various offices, ये institutions हैं. तो resident doesn't mean only individuals, human beings. Resident कोई person भी हो सकता है, कोई institution भी हो सकता है. Who has been residing in a country for more than 1 year and whose center of economic interest lie in that country. ऐसा कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो किसी कंट्री में रह रहा है 1 साल से ज़्यादा टाइम तक, कितने टाइम से वो उस कंट्री में रहना चाहिए, मोर देन 1 ईयर, एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन मस्ट बी बिलोंगिंग टू दैट कंट्री इन विच दैट पर्सन इज़ रिजाइडिंग. जिस देश में वो व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन 1 साल से ज़्यादा टाइम से वर्क कर रहा है, उसका सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में होना चाहिए. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? दैट पर्सन मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दैट कंट्री, या दैट इंस्टीट्यूशन मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दैट कंट्री. देन विल से दैट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन और इंस्टीट्यूशन इज बिलोंगिंग टू दैट कंट्री. ओके, सो ऐसे सारे लोग, ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं फॉर मोर देन 1 ईयर और इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑल दीज विल बी कंसिडर्ड एज द नेशनल रेजिडेंट्स ऑफ
India. Is this clear? So in this regard following points should be kept in mind. अब कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा. क्या? नेशनल रेजिडेंट्स रेफर टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस. नेशनल रेजिडेंट्स का मतलब केवल इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं. इट मे बी इंडिविजुअल, इट मे बी एन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल रेजिडेंट्स include both citizens of the country and non-citizens of the country also. मतलब national resident doesn't mean citizen. मतलब citizen of a country तो national resident होगा भी. जो नॉन सिटीजन्स है, जो कंट्री के सिटीजन्स नहीं हैं, वो भी रेजिडेंट्स हो सकते हैं. कौन? जो उस कंट्री में 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड से रह रहे हैं. मीन्स ऑल इंडियंस हु आर हैविंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, who are having citizenship of India, those who have the voting right in India as well as they are having passport of India. जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, इंडिया में वोटिंग राइट है, वो इंडिया के सिटीजन्स हैं. ये सारे तो इंडिया के रेजिडेंट्स कहे ही जाएंगे. बट दोज फॉरेनर्स ऑल्सो who have been residing in India for more than 1 year, though these are not the citizens of our country, they do not have voting right in our country, they are not having passport of our country, even they will be considered as the residents of a country. Means Australians, Japanese, Americans and other foreigners who are working in India for more than 1 year, though these are not the citizens of our country, हमारे country में इनको voting right नहीं है, but for the point of view of national income accounting these will be considered as the residents of our country. तो रेजिडेंट्स में कौन आते हैं? किसी भी कंट्री के सारे सिटीजन्स आते हैं. एंड ऑल दोज नॉन सिटीजन्स, ऑल दोज फॉरेनर्स हु हैव बीन वर्किंग इन दैट कंट्री फॉर मोर देन 1 year, these are also the residents of the country. Is this clear? Next, as I told you that not only individuals but institutions, organizations are also the citizens of a country, but international organizations like World Bank, WHO, World Health Organization, means International Monetary Fund, World Trade Organization are not considered as the residents of country in which they operate. Kindly correct it. It is not cooperate, it is operate. So जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो जिस कंट्री में ऑपरेट करते हैं वहाँ के भी सिटीजन्स नहीं होते हैं, या किसी भी कंट्री के एक्चुअली ये सिटीजन्स नहीं होते हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री, बट एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर, this is ARE, are considered as the residents of those country to which they belong. मतलब international organizations which are operating in India like offices of World Bank, WHO, IMF, WTO, it is clear to us that these are not the residents of our country. But those, what is about those who are working in these in offices में, वो international organizations के offices में जो हमारे कंट्री में लोकेटेड है, इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस कंट्री के रेजिडेंट हैं? तो ये उन कंट्रीज़ के रेजिडेंट्स होंगे जिनसे बिलोंग करते हैं. मीन्स ऑफिस ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड इन इंडिया, इफ़ इंडियंस आर वर्किंग इन दिस ऑफिस, these are the residents of India. If Pakistanis are working, these are the residents of Pakistani. If Australians are working in the office of World Bank located in New Delhi, these individuals will be considered as the residents of Australia. Americans are working, residents of America. मतलब जो वर्कर्स होते हैं वो उस कंट्री के रेजिडेंट्स होते हैं जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं. कौन से वर्कर्स? ऐसे वर्कर्स जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं. अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है. एम्प्लॉयज़ ऑफ फॉरेन एम्बेसीज़, अभी मैंने बात करी थी कि फॉरेन एम्बेसीज़, मिलिट्री बेसिस, साइंटिफिक स्टेशंस, इंफॉर्मेशन एंड इमिग्रेशन ऑफिसेज, एड एजेंसीज़ जो फॉरेन कंट्रीज़ के हैं और हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं. मतलब सपोज़ अमेरिका का मैं एग्जांपल लेता हूँ. अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकन मिलिट्री बेस, अमेरिकन साइंटिफिक स्टेशन, इंफॉर्मेशन एंड इमिग्रेशन ऑफिस ऑफ अमेरिका एंड एड एजेंसीज ऑफ अमेरिका, दीज आर लोकेटेड इन इंडिया. वी नो दैट दीज आर नॉट द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, दीज आर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अमेरिका. ये तो हमको पता है. बट व्हाट इज़ अबाउट देयर एम्प्लॉयज़? यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ये सारे एम्बेसीज किस कंट्री को, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस किस कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं? USA को बिलोंग कर रहे हैं. ये लोकेटेड कहाँ पे हैं? इंडिया में. सो दीज आर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ USA बिकॉज दीज आर बिलोंगिंग टू USA, दो दीज आर लोकेटेड इन इंडिया. नाउ व्हाट इज़ अबाउट देयर एम्प्लॉयज़? इनके एम्प्लॉयज़ किस कंट्री को बिलोंग करेंगे? तो वही दे रहा है, these employees are considered as the residents of those countries to which these offices belong if these employees have been working for more than 1 year. ये जो ऑफिसेज हैं USA के,
इंडिया में लोकेटेड हैं, तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ गए? यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ गए। अब इसमें जो लोग भी काम कर रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, एनी वन हु इज़ वर्किंग इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर विल बी कंसिडर्ड एज द रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री वेयर ही इज़ वर्किंग। तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, दीज आर वर्किंग in the domestic territory of America for more than 1 year, that is why they will become the residents of America. So वही लिखा हुआ है, ये ऑफिसेस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? यूएसए से बिलोंग करते हैं। दैट इज़ वाई एम्प्लॉयज़ who have been working in these offices for more than 1 year, since they are working for more than 1 year within the domestic territory of America, because these offices are the domestic territory of America, that is why these will be considered as the residents of America. But employees of same offices, American embassies, military bases, scientific stations, information and immigration offices and aid agencies which are located in India, ये सेम ऑफिसेज जो इंडिया में लोकेटेड हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं ये ऑफिसेज, इनके ऐसे एम्प्लॉयज़ who are working for less than 1 year, ये 1 साल से कम से इन ऑफिसेज में काम कर रहे हैं। तो ये ऑफिसेज कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? ये ऑफिसेज अमेरिका के हैं। कहाँ लोकेटेड है? इंडिया में है। बट दीज विल बी कंसिडर्ड एज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं, बट दे आर वर्किंग फॉर लेस देन 1 ईयर। तो जो फॉरेन एम्प्लॉयज़ में काम कर रहे हैं, लेस देन 1 ईयर से काम कर रहे हैं, तो अमेरिका में जब 1 साल से ज़्यादा से काम करेंगे तब अमेरिका के रेजिडेंट्स बनेंगे। ये अभी अमेरिका के रेजिडेंट्स नहीं माने जाएंगे। तो कहाँ के रेजिडेंट्स होंगे? जिस कंट्री से ये बिलोंग करेंगे वहाँ के रेजिडेंट्स बन जाएंगे। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज military base of USA located in India. Okay, so ये जो military base of USA located in India है, this is the domestic territory of USA. In this domestic territory, a person from Japan, a person who is a citizen of Japan is working for less than 1 year. 1 year से कम टाइम पीरियड से this person is working. That person is working for less than 1 year time period. So because that person is working for less than 1 year time period, where he is working? He is working in domestic territory of USA. This is territory is located in India, but it is the domestic territory of USA. A Japan person belonging to Japan is working for less than 1 year. That is why this person will be considered as the resident of Japan. But if this person is working for more than 1 year, 1 साल से ज़्यादा से काम कर रहा है यही जापानीज़ USA के डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर, विच इज़ लोकेटेड इन इंडिया, so this Japanese will not be considered as the resident of Japan. This Japanese now will be considered as the resident of USA. Okay, likewise, suppose Indian embassy located in America and an Australian is working for more than 1 year. Whether that Australian will be the resident of Australia, a resident of America, a resident of India. So that Australian will be the resident of India because that Australian is working in the domestic territory of India for more than 1 year, and any person who is working in domestic territory of a country for more than 1 year will be considered as a resident of a country, though that person is not the citizen of a country. So that Australian is a citizen of Australia, but he is working within the domestic territory of India because he is working in the Indian embassy located in America. Indian embassy located in America is the part of domestic territory of India, that Australian is working for more than 1 year. That is why he will be considered as the resident of India. Next example, Indian embassy located in America and Australian is working for less than 1 year. Since that Australian is working in Indian domestic territory for less than 1 year, that is why that Australian will not be considered as the resident of India. So he will be considered as the resident of that country to which that Australian belong. That Australian is belonging to Australia, so he will be considered as the resident of Australia. Is this clear? तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी फॉरेन एम्बेसीज, मिलिट्री बेस, साइंटिफिक स्टेशन, इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन ऑफिसेस हैं एक कंट्री के, उसमें जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, दे विल बी बिलोंगिंग टू दैट कंट्री टू विच दीज ऑफिसेज बिलोंग इफ दीज आर वर्किंग फॉर मोर देन 1 year.
if these foreigners are working for more than 1 year. If these foreigners are working for less than 1 year, then these foreigners will be the residents of those country to which these foreigners belong. यदि 1 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं, so these will become the residents of those countries to which these offices belong. If they are working for less than 1 year, they will be considered as the residents of those countries to which these individuals belong. Is this clear? Next, last point, workers from across border who cross borders regularly to work in the given country are treated as the residents of the country to which they belong, not the residents of country where they work. मतलब सपोज इंटरनेशनल बॉर्डर है 2 कंट्रीज़ का, ए कंट्री और ये बॉर्डर है और बी कंट्री. ए कंट्री से वर्कर्स एवरी डे मॉर्निंग में आते हैं, बी कंट्री में काम करते हैं और इवनिंग में वापस चले जाते हैं. तो यही पूछा जा रहा है कि जो वर्कर आ रहे हैं ए कंट्री से बी में और बी से वापस ए में चले जा रहे हैं, जिनको बोला जाता है बॉर्डर वर्कर्स, तो इन वर्कर्स को किस कंट्री का रेजिडेंट माना जाएगा? सिंस दे आर वर्किंग इन कंट्री बी बट नॉट फॉर मोर देन 1 ईयर. ये एवरी डे आते हैं और अगले ही दिन और उसी दिन वापस चले जाते हैं. तो ये बी कंट्री के रेजिडेंट तब माने जाते हैं जब बी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक काम कर रहे होते. बट ये तो आते हैं 6-7 आवर्स काम करते हैं और वापस चले जाते हैं. दैट इज़ वाई दे विल बी कंसिडर्ड एज द वर्कर ऑफ दैट कंट्री टू विच दे बिलोंग. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, मेनी पाकिस्तानीज एवरी डे क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, कम टू इंडिया, वर्क थ्रू आउट द डे, in the evening they return back to Pakistan. So question is that whether these Pakistanis will be the resident of India or Pakistan, these will be considered as the resident of Pakistan. Income earned by them will be included in the national income of Pakistan. Why? Because they are working in India but not for more than 1 year. India may be continuously they have been working for more than 1 year. If they would be working for more than 1 year, they would be included in the they would be considered as the residents of India, but they are not working for more than 1 year. Every day they are coming and returning back. That is why they will not be considered as the resident of India. They will be considered as the resident of Pakistan. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को मेज़र करने के 3 मेथड्स होते हैं. पहला मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडेड मेथड. नेक्स्ट मेथड इज़ इनकम मेथड. थर्ड मेथड इज़ एक्सपेंडिचर मेथड. देर आर 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग. तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के 3 मेथड्स कैसे आए, कैसे डेवलप हुए 3 मेथड्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास्ट नॉलेज में छिपा हुआ है, जो नॉलेज आपको दिया गया था वाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. वो चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था, तो दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट कि production means production of goods and services is exactly equal to income, and income is exactly equal to expenditure. ये 3 थिंग्स ऑलवेज एग्जैक्टली इक्वल होती है. मतलब किसी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन सपोज ₹500 करोड़ की गुड्स एंड सर्विसेज का हमारे कंट्री में सपोज प्रोडक्शन होता है, तो ये प्रोडक्शन मार्केट में सेल आउट किया जाएगा. मार्केट में सेल आउट किया जाएगा तो 500 रुपीज़ विल बी रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, एंड दिस 500 रुपीज़ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनकम अर्न करेंगे किस फॉर्म में? फैक्टर इनकम. ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ कि फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम, जब भी हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इनकम की बात करते हैं तो फैक्टर इनकम होता है, क्योंकि इनकम में हम केवल फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, नॉन फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि नॉन फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करेंगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ये क्रिएट करेंगे. तो अभी जब भी मैं इनकम की बात करूँगा, बट ऑब्वियस रहेगा कि मैं बात करूँगा फैक्टर इनकम की. जब नॉन फैक्टर इनकम की बात करनी होगी तो स्पेसिफिकली उसका नाम मैं लूँगा नॉन फैक्टर इनकम. तो 500 करोड़ की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, इसको मार्केट में बेचा जाएगा, तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे बेचने के बाद कितना अमाउंट ऑफ मनी रिसीव करेंगे? 500 करोड़ रुपीज़. एंड एज वी नो दैट इन प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन यूज्ड, तो दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी पेड हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी? 500 करोड़ रुपीज़. तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना अमाउंट ऑफ मनी रिसीव करेंगे? 500 करोड़ रुपीज़. किस फॉर्म में? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी के फॉर्म में. तो इनकी फैक्टर इनकम भी कितनी हो जाएगी? 500 करोड़ रुपीज़ हो जाएगी. मैंने बताया था जितनी भी इनकम लोग अर्न करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, तो एक्सपेंडिचर भी कितना कर देंगे? 500 करोड़ रुपीज़.
तो इस तरह से हमको एक ये इन्फॉर्मेशन है, एक नॉलेज हमारे पास है, वी हैव प्रीवियस नॉलेज ऑफ दिस थिंग दैट द प्रोडक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो हमको पता करना है नेशनल इनकम पता करना है, तो क्या करेंगे, एक मेथड ये हो सकता है कि विल गो टू investigators, it's statistical investigators will go to the different individuals of a country, different residents of a country, and they will ask that how much factor incomes they have earned, और जो भी वो आंसर करेंगे, जो भी फैक्टर इनकम्स उन्होंने अर्न किया उन सारे फैक्टर इनकम्स को एक साथ ऐड कर दिया जाएगा, तो पता चल जाएगा नेशनल इनकम। यदि ये वाला मेथड यूज़ किया जा रहा है तो इसको बोला जाएगा इनकम मेथड। सपोज़ इस तरह से पता करने से लोगों ने बताया कि उन्होंने फैक्टर इनकम टोटल अर्न किया 500 करोड़ रुपीज़ का, तो एक ये मेथड हो गया नेशनल इनकम पता करने का। दूसरा पता करने का तरीका ये है कि हमको पता है कि रेजिडेंट्स ने उतनी ही इनकम अर्न की होगी जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया होगा, बिकॉज प्रोडक्शन इक्वल्स टू इनकम। सो सेकेंड क्वेश्चन वी कैन आस्क that how much production of goods and services they have done, means goods and services are how many rupees they have produced. So second approach ये हो सकता है कि investigators will go to the residents of a country, and this time they will not ask that how much income they have earned, they will ask that what is the values of goods and services produced by them, and all these values will be added. यदि सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल रेजिडेंट्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट फैक्टर इनकम्स और व्हाट रेजिडेंट्स हैव अर्न इन फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम। तो ये भी करेंगे तो आपको कितना अमाउंट ऑफ मनी पता चल जाएगा, 500 करोड़ रुपीज़ आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, नेशनल इनकम के, क्योंकि इनकम इक्वल्स टू प्रोडक्शन। या तीसरा अप्रोच ये हो सकता है कि हम उनसे इनकम के बारे में ना पूछे, रेजिडेंट से पूछें कि कितना अमाउंट ऑफ मनी दे हैव स्पेंड, बिकॉज इनकम इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सो इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, विल गो टू द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड आस्क दैट हाउ मच एक्सपेंडिचर दे हैव डन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, और ये सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर देंगे तो भी हमको क्या पता चल जाएगा, नेशनल इनकम। और यदि फर्स्ट मेथड से नेशनल इनकम 500 है तो इस अप्रोच से भी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय देम, टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना आ जाएगा, 500 करोड़ रुपीज़। तो यदि प्रोडक्शन 500 करोड़ का है तो इनकम 500 करोड़ की होगी, तो एक्सपेंडिचर भी 500 करोड़ का होगा। तो 3 अप्रोच हो सकता है, जाएँ लोगों से और हम पूछें कि हाउ मच फैक्टर इनकम दे हैव अर्न, इस तरह से हम नेशनल इनकम पता कर सकते हैं, या पूछें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे हैव प्रोड्यूस्ड, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दें तो भी नेशनल इनकम पता चल जाएगा। या हम लोगों से पूछें कि हाउ मच एक्सपेंडिचर दे हैव डन, यदि एक्सपेंडिचर्स को जोड़ेंगे तो भी हमको नेशनल इनकम पता चल जाएगी। तो जब एक्सपेंडिचर्स को ऐड करके नेशनल इनकम निकालते हैं तो इसको एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। जब फैक्टर इनकम्स को ऐड करके नेशनल इनकम निकालते हैं तो इसे इनकम मेथड बोलते हैं। जब मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड को ऐड करके नेशनल इनकम को निकालते हैं तो इसे बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। तो इस तरह से 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के। नाउ आई एम कमिंग टू फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज़ प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड में वेरी सिंपली विल जस्ट एट द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल रेजिडेंट्स, और नेशनल रेजिडेंट्स ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा है एग्जैक्टली इतनी ही इनकम उन्होंने अर्न करी होगी, तो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल रेजिडेंट्स यदि हम ऐड कर लेंगे तो भी हमको नेशनल इनकम पता चल जाएगा। तो इसके स्टेप्स देखते हैं कि क्या क्या इसमें करा जाता है। स्टेप 1 में क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। पहले हम प्रोडक्शन सेक्टर को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर में क्लासीफाई कर देते हैं। क्यों, बिकॉज इन दिस मेथड वी आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा रिगार्डिंग द मार्केट वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। क्योंकि कंट्री के बाहर गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हुआ ये पता लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई हम केवल हमारे रीच में क्या है, द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो इन्वेस्टिगेटर्स, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स आर सेंट बाय गवर्नमेंट, government means that office of government which has the responsibility of the estimation of national income, that is Central Statistical Organization. This office sends its statistical investigators to production sector to collect the data regarding the market value of goods and services produced in the production sector of a country. Production sector of a country is located within the domestic territory of the country. So we can say that the data regarding the market value of goods and services produced in production sector of a country or within domestic territory of a country is firstly collected by the investigators. अब आप कहोगे कि तो डेटा कलेक्ट करना है तो इसको प्रोडक्शन सेक्टर को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर्स में क्यों डिवाइड किया जाता है, बिकॉज
जो प्राइमरी गुड्स होती हैं उनका नेचर अलग होता है, सेकेंडरी गुड्स का नेचर अलग होता है, और टर्सरी गुड्स मतलब सर्विसेज का नेचर अलग होता है. तो सम इन्वेस्टिगेटर्स आर ट्रेन टू कलेक्ट द डेटा रिगार्डिंग सर्विसेज, सम इन्वेस्टिगेटर्स आर ट्रेन टू कलेक्ट द डेटा रिगार्डिंग secondary goods, and some investigators are trained to collect the data regarding primary goods. So those who have specialization in the collection of data regarding primary goods are sent in primary sector, and those who have specialization regarding the collection of data of secondary goods are sent to secondary sector, and those have specialization in collecting the data regarding the services are sent to service sector or tertiary sector. To collect the data, they collect the data. किसका डेटा कलेक्ट करते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मीन्स इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स. और इन सारे डेटा को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. जब इसको ऐड कर देंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो हमको क्या मिल जाएगा? GDP MP मिल जाएगा. ओके, तो सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट क्या करते हैं? GDP MP. अब GDP MP को पता करने के लिए क्या करते हैं? सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशंस डन इन ये ओल्ड आप कट कर दीजिएगा, ओल्ड कोई टर्म नहीं है, गलती से टाइप हो गया. सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड डन इन द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स टू गेट GDP MP. अब आप कहोगे कि GDP MP का डेफिनेशन तो हम ये पढ़े हैं, सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. ये GDP होता है. यहाँ बोला जा रहा है टू गेट GDP वी हैड द ग्रॉस वैल्यू एडिशंस डन इन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स टू गेट GDP. ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन को हम क्यों का सम टोटल क्यों कर रहे हैं? मार्केट वैल्यू का सम टोटल क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट. कैसे, इसको हम देख लेते हैं. एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है. यहाँ पे एग्जाम्पल में देयर इज़ अ फार्मर हु इज़ प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड ही इज़ सेलिंग व्हीट टू द ओनर ऑफ अ फ्लोर मिल in 1000 rupees, and this mill owner is producing wheat flour with the help of this wheat and selling this wheat flour in 1500 rupees to a baker, and baker is making bread with the help of this wheat flour and making bread and selling it to consumers in 2000 rupees. Is this clear? Now we'll see that what is the total value addition in this process of making bread. ये दिखाया गया है process of making bread. Someone flour mill is purchasing wheat, and from this wheat it is making flour mill. Then this flour mill is selling this flour to a bakery, and bakery is making bread and selling to consumer. So this is the entire process of making bread from wheat. Wheat से bread कैसे बनता है, इस पूरे प्रोसेस को दिखाया गया है. इस प्रोसेस में कितना वैल्यू एडिशन किया गया है. सबसे पहले फार्मर को का एग्जांपल लेते हैं. फार्मर के पास जब व्हीट है तो उस व्हीट की वैल्यू कितनी है? 0. फार्मर के पास व्हीट की वैल्यू कुछ नहीं है. फार्मर ने व्हीट फ्लोर मिल को सेल करा तो फार्मर को कितना मिला? 1000 रुपीज़. तो अब व्हीट की वैल्यू जो पहले 0 थी, अब इसमें कितना वैल्यू ऐड हो गई? 1000. मीन्स नाउ व्हीट ऑफ 0 रुपी हैज़ बिकम द व्हीट ऑफ 1000 रुपीज़. अब इस 1000 रुपीज़ के व्हीट को फ्लोर मिल में यूज़ करा जाता है. फ्लोर बनाया जाता है कितने का? 1500 का. तो इस फ्लोर मिल में क्या हो रहा है? व्हीट ऑफ 1000 रुपीज़ इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू फ्लोर ऑफ 1500 रुपीज़. तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है? 500 का. 1000 का फ्लोर यूज़ किया जा रहा है और इसे कन्वर्ट किस में कर दिया जा रहा है? 1500 में. तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितने का हो गया? 500 का एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन. अब इस 1500 का फ्लोर यूज़ करके बेकर ने ब्रेड बनाया और उस ब्रेड को कितने में बेच रहा है? 2000 में. सो ही इज़ यूजिंग द फ्लोर ऑफ 1500 एंड मेकिंग अ ब्रेड ऑफ 2000 रुपीज़. तो ये वैल्यू एडिशन कितने का कर दिया इसमें? 500 का. तो टोटल वैल्यू एडिशन का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन. इस पूरे प्रोसेस में ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 1000 + 500 + 500 = 2000. और जितने का ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ उतना ही है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. द ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. यू कैन सी दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज़ 2000. तो किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के प्रोसेस में जितना वैल्यू एडिशन होता है उसको जोड़ देते हैं तो पता चल जाता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन. एंड ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं. सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन. ग्रॉस वैल्यू एडिशन किसके बराबर होता है?
मार्केट वैल्यू को। तो जब हम कर रहे हैं सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन, एक्चुअली वी आर डूइंग द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू डन इन द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स. The primary, secondary and tertiary sectors of any country are located inside the domestic territory of the country. So actually we are adding the market value of all products. All products means all goods and services produced within primary, secondary and tertiary sector, means within domestic territory of the country during the time period of 1 year. और जब इसको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, GDP MP मिल जाएगा. तो इस पूरे प्रोसेस में मतलब यहाँ पे टेक्निकल नेम मार्केट वैल्यू जो हम बोलते हैं, जिस वैल्यू के प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस. उसका टेक्निकल नेम होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन. अभी मैंने दिखाया कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है. प्रोडक्शन प्रोसेस के जितने भी स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, उन सारे स्टेप्स में जितना वैल्यू प्रोडक्ट में ऐड किया गया होता है उन सारे वैल्यूज़ को एक साथ जोड़ लेते हैं तो पता चल जाता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन. जो भी वैल्यू एडिशन हम किए रहते हैं और वो एग्जैक्टली इक्वल होता है मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू के. और मार्केट प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स ऑफ दैट कंट्री. जब ये करते हैं तो हमको मिल जाता है GDP MP. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर्स में क्लासीफाई कर देते हैं. क्यों करते हैं, सो दैट investigators, statistical investigators can collect the data from primary, secondary and tertiary sectors easily. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स 3 पार्ट्स होते हैं प्रोडक्शन सेक्टर के. प्रोडक्शन सेक्टर से हमको मार्केट वैल्यू या जिसका दूसरा नाम होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन का डेटा हमको कलेक्ट करना है. डेटा आसानी से कलेक्ट हो सके इसीलिए सम इन्वेस्टिगेटर्स आर have to be sent primary, some have to be sent in secondary and some have to be sent in tertiary sector. तो इन तीनों सेक्टर्स में भेजने से पहले प्रोडक्शन सेक्टर को 3 सेक्टर में क्लासीफाई करते हैं. कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को प्राइमरी में, कुछ को सेकेंडरी में, कुछ को टर्सरी सेक्टर्स में भेज देते हैं. उसके बाद वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन विच इज़ ऑल्सो नोन मार्केट वैल्यू का डेटा कलेक्ट करते हैं. सारे डेटा को ऐड कर देते हैं तो मिल जाता है GDP MP. और उसके बाद गोल्डन रूल लगा के हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेशनल इनकम, क्योंकि उनको पता है नेशनल इनकम का दूसरा नाम है NNPFC. और गोल्डन रूल यूज़ करके हम फार्मूला डेवलप कर लेते हैं. फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे हमको चाहिए तो फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी. गोल्डन रूल यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ नेशनल, नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFI, ये फार्मूला हो गया. एंड नेट इक्वल्स टू यहाँ ग्रॉस है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन. तो ये गोल्डन रूल लगा के हमने ये फार्मूला डेवलप कर लिया. तो इस तरह से ये 3 मेथड्स है. वेरी सिंपल. फर्स्ट मेथड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स. सेकेंड स्टेप सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशंस इन ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में केवल फाइनल प्रोडक्ट्स को ही लेते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है. इसीलिए फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स टू गेट GDP. एंड देन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम GDP MP विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल. गोल्डन रूल यूज़ करके GDP MP से हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेशनल इनकम. अब हमको ये देखना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेन फार्मूला ऑफ वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड का सबसे बड़ा फार्मूला यही होता है कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन कैसे निकाला जाए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन को कैसे पता किया जाए. ग्रॉस वैल्यू एडिशन को वैल्यू एडेड भी बोला जाता है या वैल्यू एडिशन भी बोला जाता है या ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोला जाता है या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोला जाता है. क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडिशन करते हैं तो हमको क्या पता चल जाता है, प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस भी पता चल जाता है. इसीलिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन या ग्रॉस वैल्यू एडेड को ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोला जाता है. इसको GVMP शॉर्ट में बोला जाता है. और ग्रॉस वैल्यू एडिशन डन इन ऑल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जब हम करते हैं तो हमको मिल जाता है GDP MP भी. इसीलिए GVMP को GVAMP ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को हम GDP MP भी बोल सकते हैं. क्यों, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडिशन का जब हम सम टोटल ले रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, GDP MP मिल जा रहा है. अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशंस डन इन द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स टू गेट GDP MP. जब ग्रॉस वैल्यू एडिशंस को यूज़ कर रहे हैं तो GDP MP भी मिल जा रहा है हमको. इसीलिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन को GDP MP भी बोला जाता है. इसका फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ये फार्मूला कैसे आया, वैल्यू ऑफ, जैसे यहाँ पे वैल्यू एडिशन आपको निकालना हो, किसी भी स्टेज में आपको वैल्यू एडिशन पता करना हो तो कैसे पता करेंगे,
वैल्यू एडिशन जैसे यहाँ पे ब्रेड जब बना के कंज्यूमर्स को बेचा गया, ये इस बेकरी ने 2000 में ब्रेड बना के कंज्यूमर को बेचा, तो यहाँ वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, ब्रेड कितने में बेचा 2000 में, और इस ब्रेड को बनाने के लिए फ्लोर कितने में ख़रीदा था 1500 में, तो वैल्यू एडिशन कितने का हुआ 500 का वैल्यू एडिशन इसने किस में करा, फ्लोर में, फ्लोर को ब्रेड में कन्वर्ट करा बेकरी ने और इसमें वैल्यू ऐड कर दिया 500 का। तो वैल्यू एडिशन के लिए कौन सा फार्मूला आपने लगाया, 2000 माइनस 1500, तो 2000 क्या है, व्हाट इज़ 2000, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट है या जो फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जाता है उसको बोलते हैं आउटपुट। तो आउटपुट इस केस में क्या है, ब्रेड है, ब्रेड, और ब्रेड की वैल्यू कितनी है 2000, तो 2000 इज़ द वैल्यू ऑफ आउटपुट, 2000 is the value of output. And what is this 1500, 1500 is the value of flour which is being used in bakery as intermediate good. ये 1500 रुपीज़ का फ्लोर यूज़ किया जा रहा है, ये फ्लोर क्या है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है इस बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए। तो ब्रेड इज़ द फाइनल गुड, मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट, फाइनल गुड की वैल्यू कितनी है 2000, मतलब फाइनल गुड की वैल्यू 2000 है, फाइनल गुड को क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया 2000 रुपीज़, आउटपुट ये है, और इनपुट क्या है, इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल मतलब इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू कितनी है जिसको यूज़ किया गया 1500। तो इसी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड विच इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड, दैट वैल्यू इज़ नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो वैल्यू एडिशन पता चल जाता है। तो ये फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड यूज्ड मतलब वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स वैल्यू ऑफ फाइनल गुड प्रोड्यूस्ड, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड प्रोड्यूस्ड मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट, फाइनल गुड का मतलब होता है आउटपुट। तो ये हो गया, ये फार्मूला लगा लेंगे। अब इंटरमीडिएट क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू डायरेक्टली दिया रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक फार्मूला होता है उसको लगा के इसको निकालना होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फार्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज कोई प्रोडक्शन यूनिट है, सपोज देयर इज अ प्रोडक्शन यूनिट और इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट है वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट किसका है, पेन का, एक प्रोडक्शन यूनिट है पेन की, पेन इज़ द आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ जो पेन्स है दैट इज़ ऑफ 2500, मीन्स इन दिस प्रोडक्शन यूनिट पेन्स ऑफ 2500 रुपीज़ हैव बीन प्रोड्यूस्ड, 2500 रुपीज़ की पेन्स का प्रोडक्शन हुआ है। तो आप ये जानते हो कि किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में जितना भी प्रोडक्शन होता है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज़ सोल्ड इन मार्केट। ये ज़रूरी नहीं कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है पूरा मार्केट में बिकता है, कुछ पार्ट बिक जाता है और कुछ पार्ट जो रहता है अनसोल्ड रह जाता है। तो सपोज आउट ऑफ दीज पेन्स ऑफ 2500 रुपीज़, पेन्स ऑफ 2000 रुपीज़ आर सोल्ड इन मार्केट, 2000 रुपीज़ की पेन्स क्या हो गई मार्केट में सेल कर दी गई। तो ये 2000 रुपीज़ की पेन्स क्या बन जाएंगी, सेल्स बन जाएंगी, इतनी पेन्स की क्या हो गई, सेलिंग हो गई। अब जो रिमेनिंग पेन्स है कितने की, 500 रुपीज़ की, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएंगी, ये क्या बन जाएंगी, स्टॉक। कौन सा स्टॉक, ये बन जाएंगी अनसोल्ड स्टॉक। These pens of 500 rupees will become unsold stock. Okay? जो अनसोल्ड स्टॉक होता है, जब मैं बताया था इन्वेंट्री स्टॉक, प्रोडक्शन यूनिट का जो भी इन्वेंट्री स्टॉक होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, अनयूज्ड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये क्या हो गया, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऐसी फिनिश्ड गुड्स पेन्स जो कम्प्लीटली फिनिश्ड हैं, कितने की, 2500 रुपीज़ की, इसमें से 2000 की पेन्स की सेलिंग हो गई, सेल्स हो गई, 500 की पेन्स रिमेनिंग अनसोल्ड। तो ये किस में ऐड हो जाएंगी, जो इन्वेंट्री स्टॉक पहले से होगा उसमें 500 की पेन्स का स्टॉक और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जो भी इन्वेंट्री स्टॉक होगा उसमें कितने से चेंज हो जाएगा, 500 से वो स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा। सपोज़ इन्वेंट्री स्टॉक ऑलरेडी था
200 का, मीन्स 200 की पेंस ऑलरेडी प्रोडक्शन यूनिट में बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में थी, और इस फाइनेंशियल ईयर में 500 की पेंस भी रिमेन अनसोल्ड हो गई। पेंस ऑफ 500 रुपीज़ आर रिमेनिंग अनसोल्ड। तो ऑलरेडी अनसोल्ड स्टॉक 200 का था, अभी 500 का स्टॉक और इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल स्टॉक कितने का हो जाएगा, 700 का। ओके, तो चेंज इन स्टॉक कितने का हुआ, ये फाइनल स्टॉक 700 माइनस इनिशियल स्टॉक 200, तो चेंज इन स्टॉक कितना हुआ, 500। तो जितने का स्टॉक अनसोल्ड रह गया उतने से जो इन्वेंट्री स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा या इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये भी इसमें यदि हम जोड़ देते हैं, मतलब सेल्स और ये कौन सा स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, जिससे क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री स्टॉक चेंज हो जाएगा कितने से, 500 से, तो इसको बोलेंगे चेंज इन स्टॉक। स्टॉक कितने से, अनसोल्ड स्टॉक या इन्वेंट्री स्टॉक प्रोडक्शन यूनिट का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 500 से। तो यदि किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में आउटपुट की वैल्यू कितने की है ये पता करना हो, जैसे इस केस में आउटपुट की वैल्यू 2500 है, ये पता करना है, तो ये पता कर लीजिए कि कितने की सेलिंग हुई है प्रोडक्शन यूनिट में और कितने का स्टॉक अनसोल्ड रह गया है। ये पता करने के लिए पता कर लीजिए कि इन्वेंट्री स्टॉक कितने से बढ़ गया है। भाई जितने का स्टॉक अनसोल्ड होगा उतने से इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ जाएगा। तो इस केस में अनसोल्ड स्टॉक ऑफ पेंस इज ऑफ 500 रुपीज़, सो इन्वेंट्री स्टॉक विल इंक्रीज बाई 500 रुपीज़। सो व्हाट विल द चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक, 500 रुपीज़ का। तो इसी तरह से वैल्यू ऑफ आउटपुट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स और चेंज इन स्टॉक दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो यही है फॉर्मूला। वैल्यू एडिशन पता करना हो या वैल्यू एडेड पता करना, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड आउट द वैल्यू एडेड या ग्रॉस वैल्यू एडिशन या ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये जितने भी टर्म्स है सेम है, इनका फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड यूज्ड। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, अभी मैंने आपको बताया। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन कई बार डायरेक्टली दिया जाता है, मेनी टाइम्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज़ नॉट गिवन डायरेक्टली। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब यूज़ ऑफ इंटरमीडिएट गुड बाय प्रोडक्शन यूनिट। तो प्रोडक्शन यूनिट्स इंटरमीडिएट गुड्स को यूज़ करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज़ करती हैं। तो जो भी इंटरमीडिएट गुड्स की परचेजिंग होती है, फॉर प्रोडक्शन यूनिट हैव परचेज्ड इंटरमीडिएट गुड्स इन ₹500, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ 500 रुपीज़ इज़ बीइंग डन बाय प्रोडक्शन यूनिट। यदि प्रोडक्शन यूनिट ने इंटरमीडिएट गुड्स की परचेजिंग करी 500 रुपीज़ की, तो इंटरमीडिएट गुड्स की परचेजिंग करी तो इसे बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, परचेज बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। तो प्रोडक्शन यूनिट परचेजिंग किसकी किसकी करती हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स परचेजिंग दो गुड्स की करती हैं, एक करती हैं इंटरमीडिएट गुड्स की परचेजिंग और दूसरी फाइनल गुड। कौन सी फाइनल गुड, कैपिटल, मैंने आपको बताया था कैपिटल गुड्स जो होती हैं, जैसे बिल्डिंग एंड मशीन्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, ये होती है कैपिटल, ये होती हैं कैपिटल गुड्स या जिनको बोलते हैं फाइनल गुड्स। और इसके अलावा जो रॉ मटेरियल फ्यूल एक्सेट्रा प्रोडक्शन यूनिट्स परचेज करती हैं, ये होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स परचेजिंग करती हैं वो दो तरह की परचेजिंग होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की परचेजिंग एंड कैपिटल गुड्स की परचेजिंग। मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स परचेज both types of goods, intermediate goods and final goods also in form of capital goods। लेकिन नेशनल इनकम अकाउंटिंग के केस में यदि परचेजिंग बाय अ फॉर्म दिया हुआ है तो ये माना जाता है दैट इज़ द परचेजिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड। इज इज क्लियर, यहाँ पे ये समझिएगा परचेजिंग बाय अ फॉर्म ये दिया गया है, सपोज एक क्वेश्चन में कि परचेजिंग बाय अ फॉर्म ऑफ ₹500 करोड़, मतलब कि फॉर्म ने 500 करोड़ की गुड्स की परचेजिंग करी है। तो 500 करोड़ की गुड्स की परचेजिंग इंटरमीडिएट गुड्स की भी हो सकती है, रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, ये रॉ मटेरियल की भी परचेजिंग हो सकती है, या कैपिटल गुड्स जिनको बोलते हैं फाइनल गुड्स की भी परचेजिंग हो सकती है। लेकिन नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम ये मान के चलते हैं या ये माना जाता है कि यदि दिया गया है किसी भी न्यूमेरिकल में परचेजिंग बाय अ फॉर्म, ये परचेजिंग किसके बारे में दिया गया है, रॉ मटेरियल की परचेजिंग के बारे में बात करी जा रही है। यदि कैपिटल गुड्स या फाइनल गुड्स की परचेजिंग के बारे में देना होगा तो ये स्पेसिफिकली दिया जाएगा कि परचेजिंग ऑफ फाइनल गुड्स। इफ़ इट इज़ नॉट मेंशन्ड दैट वेदर द परचेजिंग बाय अ फॉर्म is of intermediate good or final good, only it is given that the purchasing by a firm it will be treated as purchasing of intermediate good and that will become the intermediate consumption। यदि किसी भी क्वेश्चन में दिया गया है परचेज बाय अ फॉर्म, परचेजिंग बाय अ फॉर्म, तो इसका मतलब वो परचेजिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड है। और परचेजिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड मीन्स यूज़ ऑफ इंटरमीडिएट गुड
मीन्स वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड यूज मीन्स वो बन जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसीलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब ये होता है परचेज बाय अ फॉर्म। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन्स परचेज बाय अ फॉर्म। ये फॉर्म किसकी परचेजिंग कर सकती है? इंटरमीडिएट गुड की भी, फाइनल गुड की भी। लेकिन नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि परचेजिंग बाय अ फॉर्म मीन्स परचेजिंग बाय अ फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो परचेजिंग बाय अ फॉर्म का मतलब हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब फॉर्म्स कहाँ कहाँ से परचेजिंग कर सकती है? 4 सेक्टर्स मैंने आपको बताए थे। फॉर्म्स हाउस होल्ड सेक्टर से भी गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स की परचेजिंग कर सकती है, या फॉर्म अदर फॉर्म से भी कर सकती है, या फॉर्म गवर्नमेंट सेक्टर से भी कर सकती है, या फॉर्म कहाँ से कर सकती है? एक्सटर्नल सेक्टर से कर सकती है। एक्सटर्नल सेक्टर से मतलब फॉरेन कंट्री से परचेजिंग कर सकती है, तो उसको क्या बोला जाएगा? इम्पोर्ट। तो परचेजिंग फॉर्म्स 4 जगह से कर सकती हैं, उसी को दिया गया है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन यदि आपको पता करना है तो परचेज बाय अ फॉर्म फ्रॉम हाउस होल्ड प्लस परचेज बाय अ फॉर्म फ्रॉम अदर फॉर्म्स, दूसरी फॉर्म से परचेजिंग कर सकती है। परचेज बाय अ फॉर्म फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से परचेजिंग कर सकती है। या इम्पोर्ट बाय अ फॉर्म, एक फॉर्म फॉरेन कंट्री से परचेज करती है तो इसे इम्पोर्ट बोला जाएगा। ऐसी जो सेल्स होती है फॉर्म्स की, सेल्स 4 जगह कर सकती हैं फॉर्म्स। सेल्स बाय अ फॉर्म टू हाउस होल्ड, सेल्स बाय अ फॉर्म टू अदर फॉर्म्स, सेल्स बाय अ फॉर्म टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फॉर्म सेल कर सकती हैं। सेल्स बाय अ फॉर्म टू फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ को जो सेल करेंगे उसे बोलेंगे एक्सपोर्ट बाय अ फॉर्म। ओके, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वैल्यू एडेड मेथड में, उसमें यही 4 फार्मूले आपको यूज़ करने हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे तो आपको पता चलेगा वैल्यू एडेड। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक दिया रहेगा, सेल्स या तो दिया रहेगा, या सेल्स के कंपोनेंट्स 4 होते हैं। सेल्स बाय अ फॉर्म टू हाउस होल्ड, सेल्स बाय अ फॉर्म टू अदर फॉर्म्स, सेल्स बाय अ फॉर्म टू गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट बाय फॉर्म। या तो ये दिया रहेगा या सेल्स दिया रहेगा, या चारों कंपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आइदर इट इज़ गिवन डायरेक्टली और इट इज़ गिवन इन फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। जैसा कि मैंने बताया इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन्स परचेज बाय अ फॉर्म। इंटरमीडिएट कंजम्पशन पता करना हो तो आपको पता करना पड़ेगा कि फॉर्म ने कितनी परचेजिंग करी है, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेज बाय अ फॉर्म। फॉर्म्स 4 जगह से परचेजिंग करती हैं। परचेज बाय अ फॉर्म फ्रॉम हाउस होल्ड, परचेज बाय अ फॉर्म फ्रॉम अदर फॉर्म्स, परचेज बाय अ फॉर्म फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इम्पोर्ट बाय अ फॉर्म। तो ये सारे फार्मूले लगा के हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज topic. Thank you.